आज मां सरस्वती परिवार की ओर से इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम आप सभी को लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। ऑनरेबल डायरेक्टर सर, respected manager sir, principal sirs and teachers, a very good morning. I wish all of you a very happy Independence Day and welcome you to all on this auspicious day. How peaceful this morning is where we are gathered to celebrate our 74th Independence Day. After uncountable sacrifices, our freedom fighter, we got independence on 15th August 1947, and because of it only we can gather and speak freely today. India's Independence Day not only signifies independence from the rule of British Raj, but it also shows the power of this country, and it shows when he unites all the people of this country. Irrespective of the caste, creed and religion, everyone will celebrate Independence Day as an honor to the nation. People across India will observe ये मर मिटने को कबूल है हमें, अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें. Now let's start our program. First I request Mr. Dayanand Sirji, founder of Maa Saraswati Public Senior Secondary School, Mr. Amit Chauhanji and Praveen Sirji to come on stage the flag hosting event. Sir, please come on stage. I request all the teachers and
Thank you, sir. Now I request Mr. Praveen Sarji to be on the stage and honor the sacrifice of the heroes who made this day a special day for all Indians. Thank you, madam. I extend my best wishes to founder of the school, director sir, Mr. Dayanand sir, and manager sir, Mr. Amit ji. I also extend my best wishes to all the teachers and students who are watching this program online. We celebrate this program daily, every year, to commemorate those patriots who sacrificed their lives to make our future better. This is the result of those sacrifices that we are breathing freely. It is very wonderful that in spite of this COVID-19 pandemic, we are gathered here to salute our nation on this day. Hope that our nations get all kind of development and achievement in future with the effort of us people and its citizens. I thank to all of you. Thank you very much to attend this program. Thank you, sir. Now I invite Mr. Amit Chauhan ji to come on the stage and honor the sacrifice of the heroes who made this day a special day for all Indians. कई मासूम आंखों में समंदर छोड़ आए हैं, वतन के वास्ते अपना हर एक ख्वाब तोड़। हमारी सरहदों के प्रहरियों को है नमन मेरा, तिरंगे की मोहब्बत में तिरंगा ओढ़ आए हैं। आज हम नमन करते हैं अपने सभी शहीदों को, जिनके कारण आज हम इस स्वतंत्र गणतंत्र में रह रहे हैं, इस स्वतंत्र वातावरण में, स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। और आज के इस पावन दिन पर मैं सभी माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के पूरे परिवार को हृदय की अनंत गहराइयों से बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से हर वर्ष बच्चे बहुत आनंद के साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहे हैं। सभी टीचर्स भी उपस्थित होते रहे हैं, पूरा स्टाफ, पूरा परिवार एक साथ रहा है। लेकिन पहली बार इस महामारी के कारण हम सब एक साथ नहीं हैं, परंतु फिर भी लाइव व्यवस्था की गई है, जहाँ से बच्चों ने और जो टीचर्स और जो बाकी स्टाफ, जो कि सदस्य इस परिवार के आज यहाँ सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, वो अपने घरों से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। उन्होंने भी इस पावन दिन आज अपने देश की आन बान शान इस तिरंगे को सलामी दी, इसके सामने नतमस्तक हुए और खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि गर्मी बहुत है। निश्चित रूप से आज का दिन
हम सभी के लिए संकल्प लेने का दिन रहा है। अपने देश को कैसे हम विकास के पथ पर और अधिक अग्रसित कर सकें, उसमें हमारा कितना योगदान हो सकता है, ऐसा सोचने का दिन रहा है। हमें लगता है कि शायद जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो IAS PCS हैं, जो CM और जो देश को विकास के पथ पर आगे लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ में हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य और उसका कर्म भी इस देश की विकास के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। एक छोटे से छोटा किसान जो सिर्फ 2 या 4 बीघे की जमीन में भी खेती करता है, वो भी विकास के लिए जुड़ा हुआ है। एक छोटे से छोटा मजदूर भी अगर कहीं मजदूरी कर रहा है, तो वो भी अगर ईमानदारी और मेहनत के साथ में इस कर्म में जुड़ा है, तो वो भी देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। तो हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हम एक शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, हम किसी गवर्नमेंट, जो हमारे मन में अपने देश के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति है, हमारे अपने काम के प्रति ईमानदारी है, तो हमेशा हम निश्चित रूप से अपने देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा से जुड़ा हुआ केंद्र है। विद्यार्थी और शिक्षक दो ही इस केंद्र के मुख्य बिंदु हैं। तो यदि हम आज पुनः संकल्प लें, हम एक बार पुनः अपनी उस ऊर्जा को पहचानें, एक बार हम पुनः ये आज प्रण लें कि अगर हम शिक्षक हैं तो पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को एक सुयोग्य नागरिक बनाने में, सिर्फ उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाने में नहीं, हम फिजिक्स के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, हिंदी के टीचर्स हैं, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने तक सीमित ना रहें। हम अपने बच्चे को कैसे एक सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं, जो हमेशा अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए और सर्वोपरि अपने देश के लिए चिंतन कर सके, जो यह सोच सके कि मेरा एक काम कैसे इस देश का नाम बढ़ा सकता है, कैसे इस देश के जो प्रगति का पथ है उसमें योगदान दे सकता है। ऐसा सोच करके हमें काम करना है। तो ऐसा प्रण हमें आज लेना है। बच्चे, कोई अनुशासनहीन बच्चे भी रहते हैं, पढ़ने में कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, पढ़ने में अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो किसी भी बच्चे में बिना भेदभाव किए हुए किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस कराए कि वो पढ़ नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, ऐसा उसको महसूस ना कराए, बल्कि उसको मोटिवेट करते हुए, उसको उत्साह देते हुए हम कैसे उसके लिए एक आदर्श के रूप में बन सकते हैं, जिससे वो जब बड़ा हो जाए, जब वो स्कूल से भी चला जाए, जब वो कुछ बन जाए, तो उसके दिमाग में रहे कि वो टीचर अगर मेरे स्कूल में ना होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। अगर वो सोच हमने अपने बच्चों को स्कूल के जाने के बाद, देखिए स्कूल में अगर बच्चे आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, उनको थोड़ा सा जो टीचर ज़्यादा ही प्यार से बोल देता है, जो टीचर थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो उनको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जब बच्चा कहीं पर सेटल हो जाता है, कहीं जाकर के डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, या कोई भी एक अपने अच्छे प्रतिष्ठान से जुड़ जाता है, तब वो वास्तविक रूप से महसूस करता है कि अच्छा अध्यापक, शिक्षक, टीचर उनके लिए कौन था। क्या वो थे जिन्होंने सिर्फ उनको साथ रह करके उनको के साथ सिर्फ मिले जुले, या सिर्फ हंसे, या सिर्फ उनके साथ में उन्होंने जो उनको सही रास्ता था वो ना दिखा करके सिर्फ टाइम पास करने वाली स्थिति में रहे, या वो टीचर रहे जो थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने विषय के लिए उनको कुछ आदर्श सिखाए हैं, उनको कुछ अच्छा बनने में सहायता की है। भले ही ये हो सकता है कि उस समय स्कूलिंग के टाइम में वो टीचर बच्चों को थोड़ा सा
स्ट्रिक्ट लगते हैं, थोड़ा उनको महसूस होता है कि हमेशा थोड़ा डांटते रहते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, सीधे बैठने के लिए बोलते हैं, ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। इतनी इस तरह की सोच के साथ में हमें काम करना चाहिए। और जो बच्चे भी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ने तक सीमित ना रहें, सिर्फ किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स लर्न करने तक सीमित ना रहें, बल्कि कैसे वो एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, कैसे वो अच्छा एक बेटा बेटी बन सकते हैं, ऐसी सोच के साथ में काम करें। अपने से बड़ों के साथ कैसे सम्मान करना है, कैसे उनको रहना है, किस तरह का व्यवहार उनको करना है, ऐसा उनको सीखना चाहिए अपने परिवार से भी, अपने पेरेंट्स से भी और टीचर्स, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से भी। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, जो ऑनलाइन क्लासेस का मिसयूज़ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी पहचान छिपा करके कुछ भी एक्टिविटी कर दें उस समय, तो शायद वो पता नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो मैं आज यहाँ से कह रहा हूँ कि जो ये महामारी रही है, इसके कारण आप लोग स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस या आपको ऐप पर जो वर्क दिया जा रहा है उसके लिए आप थोड़ा सचेत रहें, थोड़ा कॉन्शियस रहें, संवेदनशील रहें, उसका मिसयूज़ करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, आपको स्कूल से भी इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप ना करें जिससे आपके भविष्य में भी खतरा मंडराए। तो पुनः सभी से यही निवेदन कि अपने आप पर, अपने देश पर गर्व महसूस करें। ये जो भारतवर्ष है, इसको माँ भी कहते हैं, तो अपने देश पर गर्व करते हुए इसको आगे प्रगति के पथ पर हमारा ले जाने में हमारा जो योगदान हो उसका चिंतन करते हुए हमें आज के इस कार्यक्रम को उल्लास के साथ मनाना है, सेलिब्रेट करना है। और अंत में सभी को पुनः आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing their precious thought with us. Now I invite Mrs. Sunita ma'am to present her beautiful patriotic song here. बदनाम न हो
सीने से लगा लेना है माँ मेरी यादों को सीने में बसा लेना आए तेरे कूचे पर जब रात मेरी उड़कर आए तेरे कूचे जब रात मेरी उड़कर उस रात पे माता उस रात पे माता एक दुनिया बसा लेना बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना है माँ मेरी यादों को सीने में छुपा सीने में बसा लेना है माँ मेरी यादों को। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। Thank you so much, ma'am. Yes, it's a time of vote of thanks. I am proud to be a citizen of India and feel responsible to celebrate such glorious day. I thank every one of you for making this celebration a success. Thank you very much. Happy Independence Day to everyone here. Jai Hind.